Now here we are analyzing the uh, frames, मल्टी स्टोरी फ्रेम्स, ठीक है, मीन्स 5 फ्लोर के 10 फ्लोर के, सो मल्टी स्टोरी फ्रेम्स विथ मल्टी बेज. बेज मीन्स when two columns uh, are rested with one beam, so this structure we are calling it as a one bay. Okay, now if the number of columns are increased, so instead of two, in a one plane, I'm saying only in a one plane. So if we are analyzing in a plane xy direction. Okay, सो इन एक्स वाई डायरेक्शन मीन्स अभी आपके जो स्क्रीन का जो प्लेन है वो स्क्रीन के प्लेन पे अगर आपके प्लेन पे 2 कॉलम्स है, सो 2 कॉलम्स पे अगर बीम रेस्ट है, सो दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विल बिकम अ वन बेस स्ट्रक्चर. ठीक है, नाउ इफ वी इंक्रीज द कॉलम तो ये होगा एक बेस स्ट्रक्चर, एक कॉलम ये दूसरा कॉलम जिसपे बीम रेस्ट है. So this will be one bay. If we increase one more column, this will become a second bay. Okay, ये continuity में आता है. Okay, then next if we increase one more column in the same plane, so this will become a 3 bay structure. Okay, and multi-story means we are increasing the more stories above this structure, so this will be a multi-story multi-bay structure. We can analyze with this approximate method. And which are that 3 methods? Substitute frame method, cantilever method and portal frame method. ठीक है, नाउ अपन हॉरिजॉन्टल लोड कहते हैं. देन वर्टिकल लोड्स आर डेड लोड एंड लाइव लोड. सो वर्टिकल लोड अगर स्ट्रक्चर पे आता है, सो वी हैव अ सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड through which we are analyzing that structure. If the horizontal load are coming on the structure, then we have a portal frame method and the cantilever method. Okay, so these are the 3 methods by which we are analyzing our structure. Then for horizontal loads, just keep in mind that we have portal method and the कैंटिलीवर मेथड. ठीक है, अगर स्ट्रक्चर पे वर्टिकल लोड आएगा तो फिर आपको सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड को ही यूज करना पड़ेगा. ओके, नाउ वी विल सी फर्स्ट पोर्टल मेथड. So now before analyzing that frame with the portal method, we are assuming some assumptions, or we are considering some assumptions. So that assumptions are listed over here. So inflection point means the point where bending moment is 0 are called it as a inflection point. Inflection point will come at the center of the beam. That is what the assumption for portal frame method. Now same assumptions we did it for the column also. Then inflection point is located at the mid height of the column. Okay, so column के mid height में inflection point आ जाएगा, means here. So at the mid height of every story, तो हर एक story का जो कॉलम है उसके मिड हाइट पे ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाएगा. सो द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी लाइक दिस. ठीक है, ऐसे जिगजैग पैटर्न में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा. सो दिस इज व्हाट वी एज्यूम फॉर द पोर्टल फ्रेम मेथड. ठीक है, एंड द थर्ड एजम्पशन दैट ठीक है, तो ये जो कुछ भी एक्सटर्नल कॉलम पे अपन हॉरिजॉन्टल फोर्स शेयर्स विल बी दी शेयर विल ऑलवेज बी अ पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन. तो ये कॉलम के क्रॉस सेक्शन को शेयर हमेशा पैरेलल रहेगा. तो ये शेयर फोर्स यहाँ अगर अपना पी फोर्स एक्ट हो रहा है, सो इंटरनल कॉलम पे this will act as a 2p. That is what we assume for the portal frame method. So these are the 3 assumptions we are considering for portal frame method. तो यहाँ अगर मैंने कंसिडर किया कि मेरा p लोड एक्ट होता है, तो यहाँ मेरा लोड एक्ट होगा 2p, यहाँ एक्ट होगा 2p और फिर एक्सटर्नल कॉलम पे एक्ट होगा p. ओके, एनालाइजिंग और वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल ऑन दिस पोर्टल फ्रेम मेथड. ठीक है, हाँ, एनालाइज द पोर्टल फ्रेम मेथड एज शोन इन फिगर यूजिंग अ पोर्टल मेथड. ठीक है, सो ये पोर्टल मेथड से अपन को ये फ्रेम सॉल्व करना है. तो फ्रेम इज गिवन ओनली वन बे दिया है, 2 स्टोरी फ्रेम दिया है, द हाइट ऑफ कॉलम इज गिवन, बीम लेंथ इज गिवन एंड द नेम्स टू दिस बीम्स आर गिवन. ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल लोड 50 आ रहा है. सो नाउ दिस फ्रेम इज एक्टेड विद द हॉरिजॉन्टल लोड. सो फॉर हॉरिजॉन्टल लोड के लिए अपने पास कौन से मेथड है? For horizontal load, that means for wind load and earthquake load, we have 2 methods, that is portal method and cantilever method. ठीक है,
ये सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड ये हॉरिजॉन्टल लोड के लिए नहीं चलेगा। तो बस पोर्टल फ्रेम एंड कैंटिलीवर फ्रेम आर द 2 मेथड्स फॉर द हॉरिजॉन्टल लोड। तो यहाँ फ्रेम के ऊपर हॉरिजॉन्टल लोड एक्ट हो रहा है। नाउ वी विल यूज द पोर्टल फ्रेम मेथड। सो वी विल स्टार्ट विथ अवर एजम्पशंस। तो अपने एजम्पशंस में क्या बोला है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फ्रेम को हाफ पार्ट में डिवाइड करना है। वी विल कट दिस फ्रेम इन दी हाफ पार्ट। हर एक बे को आपको सेपरेटली एनालाइज करना है, हर एक स्टोरी को, नॉट बे को बट हर एक स्टोरी को आपको सेपरेटली एनालाइज करना है। एंड वी विल गोइंग टू कट दिस स्टोरी इनटू दी हाफ हाइट। ये हाफ हाइट में ये स्टोरी को अपन कट करेंगे। ओके, दैट मीन्स इट विल बी अ 2 मीटर। हाफ हाइट पे ये कंसिडर करेंगे जहां आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वहां अपन ने स्टोरी को कट किया। सो द अबव पोर्शन वी विल गोइंग टू एनालाइज। तो एज पर दी our assumptions, as per our third assumption, as I told you कि shear force in these columns will be a external column will be sorry, shear force in the और ऐसे भी बोल सकते हैं shear force on the external column is half than the internal columns। ठीक है, तो मैं नहीं कंफ्यूज करूंगी, लेट इट बी। इंटरनल कॉलम पे टॉइस होगा शेयर फोर्स एज कंपेयर टू दी एक्सटर्नल कॉलम। ठीक है, तो यहाँ एक्सटर्नल कॉलम कोई नहीं है, ओनली 2 कॉलम्स आर देयर एंड द सॉरी इंटरनल कॉलम कोई नहीं है, ओनली 2 कॉलम्स आर देयर एंड बोथ विल एक्ट एज अ एक्सटर्नल कॉलम फॉर दैट पर्टिकुलर बे। ठीक है, तो दोनों पे फोर्स एक्ट होगा H1 इटसेल्फ। ओके, या यू कैन कॉल इट एज अ PP, नो प्रॉब्लम। तो ये PP force act होगा। This horizontal force is there. Now we will find out these H values over here. So we used a summation of Fx to get that H value. Okay, and we got the H value is it as a 25 kilonewton. Okay, तो shear force कितना आ रहा है कॉलम में 25 kilonewton. ठीक है, now we will do the same process for the second bottom most story, bottom और स्टोरी बिलो टू दिस स्टोरी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टोरी के लिए अपन ये सेम प्रोसेस करेंगे। नाउ वी विल कट दिस फ्रेम एट दिस लोकेशन। ओके, ये लोकेशन पे ये फ्रेम कट करेंगे। तो ये लोकेशन पे कट करेंगे मीन्स ऊपर का सारा पोर्शन वो फ्रेम में आ जाएगा। ओके, सो वी कट इट एट द हाफ हाइट ऑफ दैट बॉटम स्टोरी एंड वी कंसिडर द होल पोर्शन ऑफ दैट बॉटम स्टोरी ओवर हियर। तो यहाँ 70 किलोमीटर का भी लोड है जो यहाँ मैंने दिखाना भूल गई हूँ। So here 70 kilonewton load is also there। ठीक है, तो फिर ये भी यहाँ हाफ पोर्शन में कट किया। नाउ आई डेवलप द FBD फॉर दिस हाफ पोर्शन। तो ये आ जाएगा H2 एट H2। ठीक है, so now I will use summation of Fx equation to get the H2 value and I got at the inflection point। तो inflection point बीम पे कहाँ आएगा, मिड स्पैन पे आएगा एंड द सेम कॉलम पे कहाँ आएगा, अगेन एट मिड हाइट पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा। तो मुझे अभी हर एक स्टोरी को हर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट के यहाँ कट करना है। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम द जॉइंट ए। सो जॉइंट ए पे मैंने इन्फ्लेक्शन पॉइंट के यहाँ कट कर दिया मेरा स्टोरी। ठीक है, so now my this story will become this story and I named it as a। तो यहाँ मुझे ये नेम क्यों दिया, क्योंकि मुझे वहाँ मोमेंट निकालना है। सो आई शुड नो द नेम ऑफ दैट पॉइंट, इसीलिए मैंने उसको नेमिंग दिया। तो अदरवाइज नेमिंग देने की भी जरूरत नहीं, यू कैन कॉल देम इट एज अ 1 2 3 4 तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो हियर मैंने नाम कैसे दिया, फॉर कॉलम आई कॉल्ड इट एज अ C एट। ओके, and for the beams I called it as a BB। okay, and I given the name according to the joint। तो ये joint A के यहाँ है इसीलिए मैंने CA consider किया, then BA consider किया। now this is near to the C joint, even it is near to D joint but initial point is C, so I consider it as a C and C। ठीक है, then यहाँ consider किया B and ये point को consider किया C suffix D। So these are the namings I have given to that inflection point। Okay, this is just to find out the moment at that particular location। I named that joints। Okay, क्योंकि फिर एग्जाम में आप नहीं बता पाओगे कि मुझे कौन से पॉइंट के यहाँ मोमेंट निकालना है। सो इट इज बेटर टू गिव द नेम्स टू दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ओके, तो मैंने उनका तो नहीं, नाउ वी विल सी फ्रॉम हाउ वी मार्क दैट फोर्सेस ओवर हियर। तो पहले BA के यहाँ, तो BA के यहाँ मैंने कौन से फोर्सेस मार्क किए, एक तो H हॉरिजॉन्टल BA फोर्स एंड V वर्टिकल BA फोर्स, ऐसे दो फोर्सेस मार्क किए। नाउ यू गो विद द एनी डायरेक्शन। If you want to show it towards the downward direction, if you want to show it away from the beam, then also be fine, no worry।
ठीक है, बस माइनस साइन विल गिव्स यू द आइडिया द योर डायरेक्शन इज इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो आपको माइनस साइन से पता चलेगा कि आपका जो डायरेक्शन है वो वैसे ना होके आपका रिवर्स डायरेक्शन में। तो मैंने ये दोनों भी टूवर्ड्स द पॉइंट दिखा दिए इनिशियल स्टेज में, ठीक है। Now after that I will draw the forces at CA point. CA means inflection point at column A, of the column at A point. तो यहाँ क्या है, यहाँ अगर के फोर्स मेरा ऊपर जा रहा है, सो टू बैलेंस दिस फ्रेम ऑब्वियसली दिस फोर्स विल कम डाउन, तो इसीलिए मैंने उसको नीचे की डायरेक्शन में दिखाया, ओके। एंड दिस फोर्स ऑलरेडी वी फाउंड आउट, तो ये फोर्स अपन ने थर्ड एजम्पशन में ऑलरेडी फाइंड आउट किया था। तो वो फोर्स कितना था, यहाँ H1, दिस इज द अपर हाफ फ्रेम, यहाँ मैंने नेम नहीं दिया है, तो ये आ जाएगा AB एंड विथ द 50 किलो न्यूटन लोड। तो H1 मुझे वहाँ मिला था 25 एंड इट इज विद द प्लस साइन, दैट मीन्स द डायरेक्शन विच आई हैव कंसिडर इज द राइट वन, ओके। तो फिर मैंने यहाँ 25, ठीक है। तो नाउ वी विल यूज द इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट दीज लेवल्स। तो सबसे पहले अभी हॉरिजॉन्टल फोर्स अपने पास है, ये भी ओनली वन हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अननोन ओवर देयर, सो डायरेक्टली आई विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस HBA, सो आई विल यूज समेशन ऑफ Fx। तो ये क्या आ जाएगा, +50 -25 is and minus HBA is equal to 0, okay। So +50 -25 will be a +25 and HB को right hand side में लेके गए, so we will get the value of HBA as a 25 kilonewton, ठीक है। Now I got the horizontal forces. Now now the two unknowns are there. VCA and VBA are the unknowns. So कैसे मुझे मिलेंगे, इधर यहाँ मैं मोमेंट फाइंड आउट करूंगी या यहाँ पे मोमेंट फाइंड आउट करूंगी। So I will get any one unknown. So for that I found out the moment at BA, at point C, sorry ये C है, CA, ओके, मीन्स कॉलम ए के यहाँ, CA के यहाँ मैंने मोमेंट फाइंड आउट किया है, नहीं शायद से मैंने BA के यहाँ किया है, 25 into 2, yes I found out at the BA location only। तो BA, this point is BA, so I found out the moment at BA, okay। and now we will find out, so for these two forces moment will be 0, ठीक है। now this force also passing from the same point, so the moment for this force is also 0, okay। only these two forces will create a moment at B location, okay। now we will find out the moment for these two forces। so this force is creating a clockwise nature moment around this point, B point के यहाँ ये force clockwise moment create कर रहा है। so for clockwise moment we will mark it with the प्लस साइन से भी मार्क किया तो भी चलेगा, माइनस साइन से भी मार्क किया तो भी चलेगा, ठीक है। सो फॉर क्लॉकवाइज मोमेंट वी मार्क इट विद द प्लस साइन, सो 25 इंटू डिस्टेंस इज 2 मीटर, ओके। तो ये पॉइंट से ये फोर्स का डिस्टेंस 2 मीटर आता है, सो 25 इंटू 2। नाउ दिस फोर्स इज क्रिएटिंग, ये VCA इज क्रिएटिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अराउंड B पॉइंट, सो द मोमेंट इज VCA इंटू 1.5, ओके, एंड विद द माइनस साइन। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ V से, वर्टिकल फोर्स इज 33.33, तो we got it as a plus 4, so that means the assumption, our assumed direction is correct, so that this will come in the downward direction, ठीक है। अगर आपको ये माइनस मिल रहा है तो क्या करो, नीचे फिर से ये वैल्यू लिखो बाय रिमूविंग द माइनस साइन एंड शो द डायरेक्शन, ओके। तो डायरेक्शन आपका अगर आपने ऊपर का दिया है तो यहाँ आपका नीचे का आएगा आफ्टर रिमूविंग द माइनस साइन, सो शो द डायरेक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये होगा, now then we got the VCA, so we will now only the VBA is unknown, so we will get that VBA by using summation of FY equation। so summation of FY जब करोगे तो VBA का भी वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगा एंड दैट वैल्यू इज 33.33, ठीक है। तो now we analyze this half portion of this upper story, ये upper story का half portion अपन ने analyze कर लिया। now we will move towards the next half portion, तो next half portion अपन analyze करेंगे from B to CB, ठीक है। so now here the forces will act in the opposite direction, तो ये जो forces थे वो opposite direction में यहाँ act हो गए at point B के यहाँ, ठीक है। now these two forces are towards the point, now on the next point this force will is towards the
you can say towards the left direction, so this force will act towards the right direction. ठीक है. Then this force is in the upward direction, so this force will act in the downward direction for the next bay. Okay, with the same values. तो ये same values वैसे के वैसे रहेंगे. Then this force is towards the left hand side. The same left hand side, the same force will act towards the left hand side from this B direction also. ठीक है. तो ये दोनों भी 25 and 25 will be in the same direction because क्योंकि ये अपन ने ऑलरेडी फाइंड आउट किए shear forces. ठीक है. तो ये उसी डायरेक्शन में एक्ट होगा. सी आई विल टेल यू 1 सेकेंड. हाँ, तो यहाँ अपन ने वो ऑलरेडी फाइंड आउट किया था एंड फोर्स, एंड कॉलम पे, and that force is towards the left hand side with the 25 value, so that we marked as it is over here with the 25 value, and then 30 then this will next frame. तो अभी अपन ने क्या किया, हाफ हाफ पोर्शन, ये हाफ पोर्शन एंड ये हाफ पोर्शन एनालाइज किया. Now we will move towards the next frame, so we will cut our frame into the from the inflection point. तो CA से BC से CC इतना पूरा एक you can say कि T-like, horizontal T-like structure we will cut at the C point. ठीक है, and we will analyze that portion. तो ये horizontal T-like structure we cut it over here and we will analyze that portion. ठीक है. तो अभी CA के जो कुछ भी फोर्सेस अपन को मिले हैं, सो दैट वी विल मार्क इट ओवर हियर. तो CA के फोर्सेस क्या है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लेफ्ट साइड पे जा रहा है, वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है. ओके, so that we will mark horizontal force will move towards the right hand side and vertical force will move towards the upward direction with the same amount. तो CA के वैसे forces but reverse direction में अपन ने CA के point पे mark कर दिए on the other frame. ठीक है. उसके बाद BC के, now BC के forces will remain unknown, so HBC and VBC these two are unknowns क्योंकि ये अभी तक अपन ने analyze नहीं किए. ठीक है, so that we will mark as a unknown values. C के यहाँ पे अपना 70 का लोड था, तो दैट बी शोन ओवर हियर एज इट इज. देन CC के यहाँ के भी दो अननोन्स है, बट दिस वी ऑलरेडी फाउंड आउट बाय यूजिंग अ थर्ड एजम्पशन. ओके, तो ये थर्ड एजम्पशन में अपन ने H2 का वैल्यू फाइंड आउट किया था, जो आया था 60 आया था. सो दैट वी मार्क्ड इट ओवर हियर एंड VCC विल बी दी अननोन. ठीक है. Now again we have a three unknowns, so we have a three equations, equilibrium equations. So I use that three equilibrium equations to get the values of that three unknowns. ठीक है. So for this numerical I will explain this how I used, but from next numerical I will not going to explain, so you do it by yourself. ये numerical के लिए मैं explain करती हूँ कि अपन ने ये three equation कैसे use किए. ठीक है. तो now we will first use summation of fx equation. तो summation of fx में ये आ जाएगा +25, then ये आ जाएगा +70. सो ये दोनों को ऐड करके ये हो जाएगा 95. सो यहाँ मैंने डायरेक्टली ये 95 लिखा है. तो देन दिस हॉरिजॉन्टल देन -60. सो ये -60 एंड ये आ जाएगा -HB. सो -HBC. ओके, तो उसको सिंप्लीफाई करोगे, सो HBC का वैल्यू आपको मिल जाएगा +35. सो दैट मीन्स अज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट. सो दैट आई मार्क्ड इट ओवर हियर. नाउ आई गॉट द हॉरिजॉन्टल फोर्स ओवर हियर. सो नाउ आई विल यूज मोमेंट इक्वेशन आइदर एट BC पॉइंट और एट CC पॉइंट. तो यहाँ मैंने BC पॉइंट के यहाँ इक्वेशन मोमेंट इक्वेशन यूज किया है. ठीक है. So I will find out the moment at this point, BC point के यहाँ moment find out करूँगी. So these three forces are passing from the BC point. So the moment for these three forces will be 0, but other four forces will generate the moment at this BC point. So this force will create a clockwise moment, and this value for so the moment value will be 25 into 2. Okay, तो ये आ जाएगा clockwise with a plus sign 25 into 2. Then this next force will create again clockwise moment at point BC. So this will create a clockwise moment like this. Okay, and the value is 33.33 into 1.5 with a plus sign. तो ये 33.33 into 1.5 with a plus sign. ठीक है. Then after that these two forces, तो 60
This 60 kilonewton will create a clockwise moment around this BC point, and the moment value is 60 into 2.5. Okay, plus, तो ये आ जाएगा plus 60 into 2.5. Then this VCC will create an anti-clockwise moment, so the वो आ जाएगा minus VCC, and distance कितना आएगा point से 1.5. So this is VCC into 1.5. Okay. Now after simplifying these all terms, we will get the value of VCC as a 166.67 kilonewton in the downward direction. Means we got the plus sign, so the assumed direction is correct and we marked it in the bracket. ठीक है, तो अभी एक वर्टिकल फोर्स मिला है. नाउ फॉर टू गेट द नेक्स्ट वर्टिकल फोर्स वी विल जस्ट यूज समेशन ऑफ Fy इक्वेशन. तो उसमें क्या आ जाएगा, दिस 33.33 प्लस दिस विल बी प्लस BC minus VCC. ठीक है, and VCC value we found out, it is 166.67. so plus 33 minus 166 will be minus 130, कुछ तो आ जाएगा 130, and yes, and that will be 133.33. ठीक है, और उसमें ये जाएगा VBC जाएगा राइट हैंड साइड पे समेशन ऑफ Fy में, एंड वी विल गेट द प्लस साइन ओवर हियर. सो ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा. ठीक है, so we found out all the forces for this case. okay, तो ये सारे अननोन्स अभी अपन ने फाइंड आउट किए. तो अभी तक अपन ने कितना फ्रेम सॉल्व किया. सो वी सॉल्व दिस हाफ पोर्शन, we solved this half portion, even we solved this portion, or now we left with only the right hand side portion, okay, of horizontal T. उतना ही अपना बचा है. so we will find out this, we will solve this also. ठीक है, तो ये फिर अपन यहाँ मार्क कर लेंगे. ओके, नाउ CB के फोर्सेस जो है, जो अपन को सेकेंड फ्रेम में मिले थे, दैट वी विल मार्क इट ओवर हियर. तो CB के फोर्सेस अपन को सेकेंड फ्रेम में क्या मिले थे, द हॉरिजॉन्टल इज टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड एंड वर्टिकल इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ वो रिवर्स हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल विल एक्ट टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड एंड वर्टिकल इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द सेम वैल्यूज. ठीक है, नाउ BC वैल्यूज वी ऑलरेडी फाउंड आउट इन द थर्ड फ्रेम. तो यहाँ BC के वैल्यूज अपन ने यहाँ फाइंड आउट किए थर्ड फ्रेम में. ओके, सो हॉरिजॉन्टल इज टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, वर्टिकल इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. so that will become a reverse, horizontal will act in the right hand side and vertical is in the downward direction. Okay, and the values already we found out that 133, and for horizontal force the value is 35. ये HBC is 35, तो ये आ जाएगा 35. ठीक है, now these two are also known, एंड ये हॉरिजॉन्टल 60 अपन ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है. कहाँ फाइंड आउट किया था, ये ऊपर फर्स्ट स्टेप में. ओके, सो H2 के जगह पे अपन ने हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड आउट किया था by considering the third assumption. So in third assumption H2 value will be 60. So that already we found out. So we will mark that 60 over here. Okay, and only the unknown is VCD. So we will solve that by finding out समेशन ऑफ Fy इक्वेशन, और फिर Fy इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा VCD एज 166.67 किलोन्यूटन. ठीक है, नाउ वी गॉट ऑल द यू कैन से कि ऑल इंटरनल फोर्सेज जनरेटेड इनसाइड द फ्रेम. तो सारे अपन को भी मिले हैं. सो नाउ वी विल जनरेट द FBD, सॉरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दैट फ्रेम. ठीक है, तो वी विल सी वन बाय वन. वी विल फर्स्ट सी इट फॉर द बीम्स. 1 सेकेंड. तो ये अपन को सारे फोर्सेस मिले हैं. ओके, नाउ वी विल सी इट फर्स्ट फॉर द बीम. तो बीम के लिए देखो, ये बीम है AB. ओके, यहाँ जो बीम है, ओके, ये जो बीम है AB, तो AB के लिए अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो एज वी नो दैट द मोमेंट जनरेटेड एट दिस पॉइंट इज 0. ओके, तो यहाँ अपन ने क्या अज्यूम किया है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट दिस लोकेशन विल कम एट द सेंटर पॉइंट. तो यहाँ मोमेंट अपना 0 आएगा. सो वॉट एवर द फोर्स मोमेंट जनरेटेड बाय दिस फोर्स विल एग्जैक्टली विल बी अपोजिट एट दिस लोकेशन. ओके, तो ये जो मोमेंट जनरेट करेगा, ऑब्वियसली दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स विल नॉट जनरेट द मोमेंट फॉर दिस AB बीम. ओके, तो वर्टिकल फोर्स ही मोमेंट जनरेट करेंगे AB बीम में. ठीक है,
तो ये वर्टिकल फोर्स जितना मोमेंट जनरेट करेगा कितना करेगा, वी बी इंटू 1.5। तो वी बी कितना है अपना, वी बी ए इज 33.33। सो 33.33 इंटू 1. अपन ने करेक्ट किया था, ये एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट करता है। सो टू बैलेंस दैट फोर्स, दिस इज, हाँ, we need to generate the clockwise nature moment over here. This is creating a anti-clockwise, so to balance that we need to generate the anti-clockwise nature moment over here. And again this is creating the anti-clockwise moment, so to balance that we need to generate the clockwise moment over here. ठीक है, तो यहाँ clockwise moment generate होगा। तो ये मैंने गलत मार्क किया था, तो ये आ जाएगा आपका वैसे, ये ऐसे आ जाएगा, एंड ये साइड से आपका ये से क्लॉकवाइज आ जाएगा। Now this will create a bending moment on my beam like this. So the tension side of this beam will come on the top, और ये साइड में ये आ जाएगा बॉटम में। तो इसका मोमेंट डायग्राम कैसे आएगा फिर, इट इज लाइक दिस, ये 50 ऐसे। ओके, you understand that how we generated this bending moment diagram for this beam? Yes, ma'am. Okay. Now we will see it for the columns. सबको समझ में, मैं फिर से नीचे का पहले बीम कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है, फिर अपन पहले नीचे का बीम देख लेंगे। नेक्स्ट बीम पे यू विल गेट एन आइडिया। तो फॉर नेक्स्ट बीम कौन सा है अपना, फ्रॉम सी टू डी। ओके, सो फ्रॉम सी टू डी, सो सी टू डी ओवर हियर, ठीक है। फॉर दिस बीम दिस फोर्स विल जनरेट द मोमेंट। ओके, तो ये फोर्स वैसे मोमेंट जनरेट कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, वैसे ऊपर जा रहा है, सो इट इज क्रिएटिंग अ मोमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो टू बैलेंस दैट मोमेंट वी नीड टू जनरेट द क्लॉकवाइज मोमेंट ओवर हियर। सो ये क्लॉकवाइज मोमेंट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये अगर ऐसे जा रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए अपन को क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी बी सी कितना आता है अपना, वी बी सी वैल्यू, it is 133.33 into distance is 1.5, 133.33 into 1.5 and that is 200। तो ये आ जाएगा आपका 200। ओके, द सेम वे साइड पे, तो ये मोमेंट क्रिएट कर रहा है ऑफ एंटी क्लॉकवाइज नेचर। सो टू बैलेंस दैट एंटी क्लॉकवाइज नेचर वी नीड टू जनरेट द क्लॉकवाइज मोमेंट एट दिस लोकेशन एंड द वैल्यू इज 200 अगेन। ओके, सो ये बीम पे मेरे बीसी बीम पे मोमेंट कैसे आएंगे, बीसी बीम पे ये साइड से मेरा मोमेंट आ रहा है क्लॉकवाइज। सो ऑन दिस साइड आई विल गेट अ क्लॉकवाइज मोमेंट एंड दिस साइड आई विल गेट अगेन क्लॉकवाइज मोमेंट। सो बिकॉज ऑफ दिस माई बीम विल बेंड लाइक दिस, ऐसे बेंड होगा, ठीक है। सो टेंशन साइड विल कम एट द टॉप एंड ये साइड में ये आ जाएगा टूवर्ड्स द बॉटम। सो माई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी लाइक दिस, टेंशन साइड पे ड्रॉ करना है एंड द वैल्यू इज 200। सो हियर आई मार्क दैट 200 विद द ब्लू इंक, ये ब्लू इंक से मार्क किया, अपवर्ड दिखा दिया और ये वाला अपवर्ड दिखा दिया विद द वैल्यू इज 200 न्यूटन। सो ये 200 यहाँ मैंने मार्क किया है ऐसे ब्लू कलर के लाइन में। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, नाउ वी विल सी इट फॉर द कॉलम्स। तो कॉलम्स के लिए अभी अपन कैसे ड्रॉ करेंगे, सी दिस पोर्टल फ्रेम इज टू इजी फॉर टू सॉल्व। ओके, क्योंकि आपको यहाँ बस इक्विलिब्रियम इक्वेशन ही यूज करने हैं, बट द मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्रिएटिंग अ मिस्टेक इन द साइन कन्वेंशन। सो प्लीज बी केयरफुल विद द साइंस एंड मार्क इट प्रॉपरली। तो अभी नेक्स्ट अपन कॉलम के लिए देखेंगे। सो फॉर द कॉलम ए बी, sorry, for the column AC. So for a column AC, so here the forces on the, ये कौन सा पॉइंट था, C पॉइंट था। ओके, सो C पॉइंट पे यहाँ AC पे ये कॉलम पे आपको मोमेंट फाइंड आउट करनी है। सो दिस ऑब्वियसली this force will not create the moment because this will create a compressive nature, but this force will create the moment। और ये मोमेंट कितना आएगा, 25 into 2। ओके, so this will be a 25 into 2 moment get generated at this point, but as we know that this is the inflection point, so to balance that we need to generate the same but equal amount of moment at this location। तो वो कितना आएगा, 25 into 2 is
50. So this will be in a clockwise nature. So to balance that we need to generate the anti-clockwise nature moment over here. ओके तो ये ऐसे आ जाएगा. 1 सेकेंड, अभी मैं ये ऐसे मोमेंट आ जाएगा यहाँ. ठीक है, एंड द वैल्यू इज 50. ठीक है, नाउ वी विल सी द हाफ पोर्शन ऑफ दैट कॉलम. ये सी, ये वाला हाफ पोर्शन. तो यहाँ पे ये 25 का मोमेंट आ जाएगा इन अ क्लॉकवाइज नेचर. सो टू बैलेंस दैट एंटी क्लॉकवाइज नेचर मोमेंट विल जनरेट ओवर हियर. ये दिस विल बी अ क्लॉकवाइज नेचर. सो टू बैलेंस दैट ऐसे मोमेंट जनरेट होगा यहाँ एंटी क्लॉकवाइज नेचर का. ठीक है, तो ये तो अल्टीमेटली अपने ये एसी कॉलम पे कैसे मोमेंट आएगा, ये साइड से मोमेंट आएगा दिस वन. ओके, एंड ये साइड से मोमेंट आएगा दिस वन. ठीक है, so how my column will bend? My column will bend like this. This will bend like this. ऐसे ऐसे bend होगा नहीं. Okay, hope you are getting this how it is bending. तो ये ऐसे bend होगा. So the tension will come at the internal side and the for the uppermost portion, and the tension will come at the bottom towards the external side for the bottom portion of that one story only. एक story के लिए. ठीक है, तो ये आ जाएगा ऐसे, जो मैंने यहाँ ब्लैक कलर से ब्लैक इंक से दिखाया. दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर आवर कॉलम. ठीक है, समझ में आया? आई विल शो इट फॉर द अदर कॉलम ऑल्सो. नाउ वी विल सी फॉर द नेक्स्ट कॉलम, फॉर दिस BD column. Okay, for this BD column how will be the moment generate? तो see, this is the portion BD portion. ठीक है, now in this portion this 25 into height कितना था अपना 2 था. Okay, so 25 into 2 will generate the clockwise moment at this location. ठीक है, so to balance that clockwise moment, then anti-clockwise nature moment will generate at the B point. तो anti-clockwise nature ये आ जाएगा अपना यहाँ. ठीक है, same for the bottom most portion of that column means यहाँ पे ये आ रहा है क्लॉकवाइज नेचर का मोमेंट. सो टू बैलेंस दैट 50 क्लॉकवाइज नेचर मोमेंट वी नीड टू जनरेट द एंटी क्लॉकवाइज नेचर मोमेंट ओवर हियर. तो ये एंटी क्लॉकवाइज का मोमेंट यहाँ आ जाएगा. सो अल्टीमेटली मेरे कॉलम पे मोमेंट्स कैसे आ गए, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आ जाएगा लाइक दिस क्लॉकवाइज नेचर, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नेचर. एंड अपवर्ड साइड पे कौन सा आ रहा था, ये आ रहा था ये 50 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट. ओके, so this will be of a anti-clockwise nature. Okay, so because of these two moments, so my column will bend like this. ऐसे bend होगा. ठीक है, ऐसे bend होगा. This is the exaggerated view of this column. इतना तो नहीं bend होगा, but just to get an idea, so I have shown it in this much of large bending in the column. तो ये ऐसे bend होगा. So that means internal portion of the top, internal top portion of column will come into the tension and the external bottom portion will come into the tension. तो फिर ये ऐसे आ जाएगा. नहीं सॉरी, ये साइड का दिखा रहे थे अपन. ये ऐसे आ जाएगा 50 किलो न्यूटन का. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, so everyone understood how we found out. Now for the bottom columns we did it in the same way. तो फिर से वैसे ही किया है. I will show that one for you. 1 second. For bottom column, for C, and यहाँ name नहीं दिया है. It is a fixed support, C2 last support. So for C2 last support will be this one. ठीक है, तो now here 60 kilonewton moment is acting on the column from C to bottom most portion. ठीक है, तो ये 60 into 2.5 will be how much? 60 into 2.5 will be 150. So 150 moment is generated in the clockwise direction at this point. Okay, ये clockwise. So to balance that moment we need to generate this anti-clockwise nature moment at this point. तो अभी ये यहाँ निकालती हूँ मैं. तो वो ऐसे मोमेंट जनरेट होगा. ठीक है, ऐसे मोमेंट जनरेट होगा.
नाउ इन द बॉटम मोस्ट एनालिसिस, तो ये हाफ पोर्शन पे कैसे आएगा, एग्जैक्टली उसके रिवर्स आएगा। अगर आप करो तो आपको चाहिए तो आप कर सकते हो। वो कैसे आएगा, सो सी पॉइंट के यहाँ के आपके फोर्सेस कैसे है, वन इज टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, वन इज टूवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नेक्स्ट जो आपका कॉलम है C2, वी विल कॉल इट एज अ सपोर्ट, सपोर्ट इज अ आई सपोर्ट, सो C2I, ये सपोर्ट को अगर मैंने आई नेम दिया तो C2I पे ये फोर्सेस कैसे आएंगे, these forces on C2I, this will be in the right hand side and this will be in the upward direction। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड का फोर्स है 60 इंटू अगेन 2.5 height will create a 150 moment, it is which is in the clockwise direction। so to balance that, anti-clockwise moment should generate at the bottom, so ये anti-clockwise का moment आएगा। so anti-clockwise will come over here of a 150 kilonewton into meter, okay, and this bending will generate this moment will generate the bending in the column like this, okay, ऐसे generate होगे। ठीक है, so the internal portion, top internal portion will be in the tension and bottom external portion will be in the tension। तो फिर ये यहाँ दिखा दिया इसे 60 into 2.5 वैसे लिखा है मैंने 150 का। ठीक है, तो दिस विल बी द मोमेंट। तो सिमिलरली यहाँ भी वैसे ही वो आ जाता है, आप सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट द सेम वे इन दिस ओवर हियर आल्सो। सो होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी